looking for I'm doing like in between jobs and all. So that's why sometimes I don't get time and it goes mismatched. But I'm sure I'll be able to look better. Yeah, no issues, Amit. Actually, the thing is, if like you guys will not practice, you will not understand the concept. So it is important for all of you to practice whatever we are teaching you in the class. Then only you will understand the actual concept. Okay? And there's also a chance of forgetting things because there are lots of things, so you might forget certain things. So constant practice is required. I understand, ma'am. I'll try my best to do it. Yes, that's why we always tell you to practice when we like within the same day when we have classes. Yeah. Anyone else? Anyone of you? Any doubt regarding any of the things? And yes, one thing more. Have you guys completed your dashboards on student turn? Like Siddharth, Amit, and Aman? Three Uh, of yeah, dashboard on I'm sorry. I think I did that before. so is it completed? Like, have you mentioned all of the information? Because the thing is, when we mark attendance, we are not able to see some of like some students' name because they have not completed their profile. So after the class, do one thing: check if you like every one of you have added all of the information or not. Okay. Yes, ma'am. And I spoke with Mandira, ma'am. Mhm. She said it's okay for me to continue. It's okay. It's basically my name and everything. And finally it comes to the payment. So I was stuck there. So I talked with Mandira and she said you can continue, no problem. Okay. Okay. No issue. Siddharth, what about you? Is your profile completed? Priyanka? Yes, ma'am. Hmm. Priyanka, what about you? Is your dashboard completed on student turn? Every one of you, please respond in the chat if your dashboard is completed or not. Then we will start with our today's class. Okay, then let me share my screen and we will start with our today's class. Okay, ma'am. Is my screen visible to you all? Yes, no? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. then let's start with our today's class. So our today's topic is deep knowledge of social media marketing. So let's discuss about social media today. I hope every one of you every one of you have an account on social media. So do unmute yourself and do let me know what you understand by social media and how is your experience on social media. I want this class to be interactive, okay? So this is the easiest topic. So no one of you should hesitate talking about social media. Yes, ma'am. We all use social media for networking with to find friends, to Yes. stay in touch with friends, and also these days there are lots of information. There are lots of groups and channels and pages, for Yes. instance, which is very informative. So we can, for example, I learned lots of digital marketing techniques and digital marketing pages through social media. That was very wonderful for me. So altogether, it's great. And as an advertising venture, it's like amazing. It's like huge. Yes. Yeah. So nowadays, edutainment is like trending a lot, like education plus entertainment. People are making videos on that over social media and things such like that. And what about others? और कोई use नहीं करता है क्या social media? करते करते Sorry. करते हैं बोला। हाँ जी बताओ तो सोशल मीडिया से आपको क्या समझ आता है मतलब सोशल मीडिया किस लिए यूज करते हैं हम? अपने मतलब क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए फर्स्टली, दूसरा और अपना जो मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और अपना जो कोर्स वगैरह है वो दूसरों तक पहुंचाने के मतलब अच्छे मतलब अलग अलग फायदे हैं इसके। हम्म। ओके अदर्स और कोई नहीं किसी को सोशल मीडिया का नहीं पता है गाइस डोंट लाइक
hesitate in talking about a topic like social media. I want responses from all of you at least. No one? No one is interested? Seriously? Okay, Priyanka is saying social media is a platform where we connect with the new people and also we promote our business and services. Yes, Priyanka, you are absolutely correct. And what about others? Guys, seriously, I'm so disappointed. Like, you cannot interact with me on such a topic which we are using in our lives. What about Siddharth and Subhendra? Are you guys even in the class? If you don't respond, I will mark you as absent. Like, I'm serious right now. This is the last time I'm asking, are you guys in the class? Shubhendra and Siddharth Mehta. Yes, ma'am. Yes. So I'm asking, like, do you know anything about social media? आपको social media से क्या समझ आता है? So that was my question. आप यूज करते हैं सोशल मीडिया? सिद्धार्थ, हाँ जी, तो आप सोशल मीडिया किस लिए यूज करते हैं? लोगों से कनेक्ट होने के लिए हाँ जी, इसलिए और? यूज करते हैं मैम। क्या कह रहे हो? अभी तो केवल लोगों से कनेक्ट होने के लिए यूज करते हैं। ओके, ठीक है, एटलीस्ट आपने रिस्पॉन्ड किया। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज रिस्पॉन्ड करा करें, कि बताया करें कि आपको उस चीज से क्या समझ आता है या कुछ। Subhendra, only you are left. Are you in the class? Okay, then let's move forward. I think, yeah, he's there. Social media is a platform where we use to connect people and promote ourselves. Okay. So during the class, if I ask something, please respond to my queries. Like, if you are not able to unmute yourself, just write in the chat box. I want this session to be very interactive. Okay. So let's talk about social media. Social media marketing. So every one of you know about social media. What is social media basically? Social media is a platform where, like, every one of you told me about कि हम connect कर सकते हैं लोगों के साथ. We can tell people about our businesses, our products and services, and we can make posts related videos, that is edutainment, and we can use social media for many different such things. So now we will discuss कि अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, कि हम सोशल मीडिया, हाउ कैन वी यूज सोशल मीडिया टू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. So social media marketing is basically a multifaceted discipline that involves promoting products, services or content through various social media platforms. तो आप सबने मुझे बताया था कि सोशल मीडिया पे हम अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट विद पीपल ओवर, लाइक हम लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया से. तो अब सोशल मीडिया हमने बात कर ली. अब गाइस, प्लीज एवरी वन ऑफ यू, कि आपका कौन सा ऐसा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, विच वन इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? I like LinkedIn and Instagram. Okay. What about others? Instagram. Okay. Facebook and Instagram. Okay. तो सुरेंद्र का इंस्टाग्राम में. एंड व्हाट अबाउट प्रियंका? ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब मेजरली आप सबने बता दिया कि आपका मेजरली आप सबको इंस्टाग्राम और कहीं ना कहीं पसंद है. सो वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट and what not, like we have plenty of social media platforms. तो अभी हम बात करते हैं कि let's talk about the aspects of social media marketing. अब इन जो हमने प्लेटफॉर्म्स के अभी हमने डिस्कस किया कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अब इनके कुछ एस्पेक्ट्स की इन पे हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज दीज प्रोडक्ट, दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. So Priyanka says Instagram, Facebook and LinkedIn
are the favorite platforms for her. So the first one is platform understanding. तो अभी हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, आप सबने बताया कि ये आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि हमें उन प्लेटफॉर्म्स की, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट दैट प्लेटफॉर्म, लाइक हाउ वी कैन लाइक ऑप्टिमल यूज, हाउ कैन वी डू ऑप्टिमल यूज ऑफ दैट। तो different social media marketing media platforms have unique demographics। तो अगर आप बात करोगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की, मैं फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम का एग्जांपल देती हूँ। तो उसमें क्या है, उसमें जब आप इनसाइट से, अगर आपकी बिजनेस मतलब क्रिएटर प्रोफाइल है या आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है सोशल मीडिया पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे क्या होगा, यू विल गेट डिफरेंट इनसाइट्स। लाइक इनसाइट्स में यू कैन गेट अ डीप नॉलेज अबाउट, डीप इनसाइट्स अबाउट हु योर ऑडियंस आर, फ्रॉम वेयर दे आर, what time preferences they prefer to use to post content on social media and features such like that। तो इंस्टाग्राम पे ये हो गया। ऐसे ही आप फेसबुक पे भी थोड़ा अलग फीचर्स, अलग इंसाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके अलग अलग डेमोग्राफिक्स होते हैं कि कहाँ से हम, कौन कौन से लोग, ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, उन ऑडियंस की क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो ये सब चीजें मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से हमें समझनी होंगी। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड these things are crucial for effective marketing। जब हम इन इनसाइट्स को, मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाती हूँ, लेट मी चेक, अगर मेरा स्टूडेंट टर्न का जो इंस्टाग्राम है वो लॉगिन है, देन आई विल शो यू कि हम इनसाइट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। वन सेकेंड गाइस, लेट मी चेक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ओके। So this is, I hope my screen is visible. So this is the meta suite of business, sorry Facebook। तो ये क्या है, फेसबुक का मेटा सूट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया होगा, अपने स्टूडेंट अर्न का जो भी हमारा पेज है स्टूडेंट अर्न का, एंड जो हमारा स्टूडेंट अर्न का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, वी हैव लिंक बोथ ऑफ देम। तो हमने उनको लिंक किया हुआ है। तो यहाँ से वी कैन सी दोनों दोनों के हमें इंसाइट्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आप रीच भी देख सकते हो, कंटेंट इंटरेक्शन, फॉलोअर्स कितने हैं, लिंक आपके जो आपने जो लिंक पोस्ट किया उस पर क्लिक्स कितने हैं, यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ऑडियंस मिल जाएंगे, मैसेजिंग और बेंचमार्किंग, ओवरव्यू, कंटेंट, मतलब हर चीज का आपको की बेस भी मिल जाएंगे कि आप अपनी रीच को कैसे बढ़ा सकते हो। रीच ऑडियंस दैट मैटर टू योर बिजनेस विद एड, अगर आप एड रन कर रहे हो तो मैसेजिंग से आपको कितना वो हो रहा है। और यहाँ पे आप डेली का भी देख सकते हो, क्यूमुलेटिव देख सकते हो। ये मैंने आपको फेसबुक का दिखाया, आई कैन स्विच ओवर कि मैं इंस्टाग्राम पे भी देख सकती हूँ कि यहाँ से परफॉर्मेंस आप देख रहे हो कि मेरी परफॉर्मेंस अप जाती जा रही है, देखो इंक्लाइन हो रहा है। ये रीच, मेरी जो रीच है उसका ब्रेकडाउन भी दिखा रहे हैं कि अभी डाउन गया था कि अप आ रहा है। तो इंस्टाग्राम की रीच दिखा रहे हैं। देन ये सब चीजें क्या है, मैं यहाँ से बहुत चीजें, और ये जो मेटा सूट है यहाँ से मैं बहुत चीजें और चेक कर सकती हूँ। तो ये क्या है, हमें ये जो भी इंसाइट्स हैं, हमें ये चीज समझनी होगी कि ये इंसाइट्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। जब हम इंसाइट को समझ लेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो when we understand these aspects, we can use social media marketing effectively। तो फॉर एग्जाम्पल जो इंस्टाग्राम है उस पे क्या है, प्राइमरली मतलब मेन फोकस किस पे होता है, वीडियोस पे, जैसे जो रील्स होगी आपकी उन पे मेन फोकस होता है। देन जो ट्विटर है उस पे ज्यादा हमें टेक्स्ट मिलेगा, मतलब टेक्स्ट बेस्ड हमारी चीजें होती है, उस पे अपडेट होता है। तो हमें ऐसे समझना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम वीडियोस ज्यादा पोस्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट ज्यादा पोस्ट कर सकते हैं, ये कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है यहाँ हम दोनों का कॉम्बिनेशन पोस्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको चीजें बहुत डीपली समझनी होंगी। अब जब भी आप अपना कंटेंट पोस्ट करोगे तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए इन सब चीजें। तो ईच प्लेटफॉर्म रिक्वायर टेलर स्ट्रैटेजी। हर ये नहीं है कि आपने एक ही सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर दी, नो। आपको यू हैव टू स्टडी द प्लेटफॉर्म, देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। देन इज ऑडियंस एनालिसिस। तो ऑडियंस एनालिसिस में क्या होता है कि जब आपकी अगर सक्सेसफुल, जो अभी मैंने ऑडियंस का आपको दिखाया, जो आपकी अगर सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट होगी, कि आपने अगर अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझ लिया, so if you have understood your targeted audience, then you will ultimately reach a successful social media marketing।
एंड ऑल्सो यू हैव टू रिसर्च देयर डेमोग्राफिक्स, कि आपको उनके डेमोग्राफिक्स समझने हैं कि वो कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, कैसे उनके इंटरेस्ट हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। और मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इनसाइट्स, अगर आप खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको उनको डीपली स्टडी करना है। सो यू हैव टू डीपली स्टडी what actually your audience want, and then you have to create content according to that, कि आपको जो content create करना है वो आपके ऑडियंस के हिसाब से ही करना है। मतलब जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इफ यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, देन यू कैन सी कि किस टाइप के कंटेंट की रीच ज्यादा है, कौन से ऑडियंस, कौन सा टाइप का कंटेंट ऑडियंस ज्यादा लाइक करी, देन यू कैन पोस्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। So tools like social media analytics, surveys, and customer personas can help in this regard. तो आप सोशल मीडिया एनालिटिक्स का भी जैसे मैंने बताया उनका यूज कर सकते हो, सर्वेज का यूज कर सकते हो, या कस्टमर पर्सोनास का यूज कर सकते हो, ये जानने में कि आपके ऑडियंस को एक्चुअल में चाहिए क्या। देन इज कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया जो है वो ऑब्वियसली, उसमें सोशल वर्ड यूज हुआ है तो वो ऑब्वियसली सोशल है ही, तो वहां से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हम जैसे अगर हम मेरा बिजनेस है तो मुझे क्या करना है, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके वी हैव टू कनेक्ट विद देम, हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज होना है वाया कमेंट्स, मैसेजेस और मेंशंस, और वी कैन पोस्ट Q&A, पोल्स ऑन स्टोरी। सो हमें ऐसे ये वेज ढूंढने कि हाउ कैन वी कनेक्ट विद आवर ऑडियंस, हाउ कैन वी एंगेज विद आवर ऑडियंस ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देन वी कैन डू कन्वर्सेशंस विद देम, एड्रेस कंसर्न्स, या कोई भी अप्रिसिएशन दिखानी है फॉलोअर्स के लिए, ये सब चीजें हमें करनी है। देन वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, जिससे हमारी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी, हमारी एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी। तो हमें ये सब चीजें भी एक कम्युनिटी एंगेजमेंट में ध्यान रखनी है। देन इज कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि कंटेंट आपको जब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रहे हो, ये नहीं है कि यू आर रेंडमली पोस्टिंग एनी। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस दिन आपकी कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील पोस्ट होगी, या कौन से पे टेक्स्ट पोस्ट होना है, कैप्शंस कौन से होने चाहिए, हैशटैग कौन सा होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पोस्ट करने से पहले ध्यान रखनी है। देन अ गुड स्ट्रैटेजी आउटलाइन, कि आपको क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी आउटलाइन करनी है जिसमें कि आप कौन से टाइप का कंटेंट क्रिएट करोगे, फ्रीक्वेंसी कब कब पोस्ट करना है, कितने दिन पोस्ट करना है, और प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात बताऊं, तो इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट क्रिएशन पोस्टिंग की बात बताऊं, तो कंटेंट पोस्टिंग में आपको क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको हफ्ते में मतलब मैक्सिमम आप 3 या 4 रील्स पोस्ट कर सकते हो, बाकी दिन यू कैन पोस्ट अपलोड अ पोस्ट ओनली। तो आपको ऐसे बैलेंस करना है कि 2 दिन 2-3 दिन हमने पोस्ट वो रील अपलोड कर दी, 2-3 दिन हमने पोस्ट अपलोड कर दी, देन एक दिन हमने संडे हो गया फॉर एग्जांपल, उस दिन ब्रेक ले लिया, या कोई भी एक दिन बीच में हफ्ते में ब्रेक ले लिया। तो ये सब चीजें जिसे हमें ध्यान रखनी होती है जब हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो कंटेंट शुड बी, ऑब्वियसली हम हमेशा बात करते हैं, चाहे वेबसाइट का कंटेंट हो चाहे किसी भी चीज का कंटेंट, एक तो आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, प्लस एंगेजिंग होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और आप जब भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि ये नहीं आज आपने 1 महीने बाद आज पोस्ट किया फिर आप 1 महीने बाद करोगे, नहीं। यू शुड बी कंसिस्टेंट वाइल पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो उससे क्या होगा, आपकी ब्रांड की ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटी बढ़ेगी। देन इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एज यू ऑल नो, आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज यू नो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके साथ कोलैबोरेट करके, एंड वी कैन क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंगली, एंड देन उससे क्या होगा, हम उनके ऑडियंस को भी रीच आउट कर रहे हैं और प्लस हमारी ऑडियंस को भी रीच आउट कर रहे हैं, तो डबल हो गया। तो उससे क्या होगा, कन्वर्जन रेट क्या हो सकता है हमारा, ज्यादा हो सकता है, कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो एक्चुअल में हमारे कस्टमर्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वी हैव टू कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स दैट कैन एम्पलीफाई योर ब्रांड रीच एंड क्रेडिबिलिटी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा जिससे हमारी वैल्यूज मिलती हैं, जिससे हमारा कंटेंट मिलता है, जो हमारे लिए एक्चुअली मतलब हमारे टारगेट ऑडियंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। देन हमें एक जेन्युइन रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, देन को क्रिएट कंटेंट दैट रेजोनेट, कि हमें इन्फ्लुएंसर और हमारे ब्रांड के हिसाब से ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि जो दोनों को ठीक लगे।
देन पेड एडवर्टीजमेंट की जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हम पेड एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर रोबस्ट एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस टू टारगेट स्पेसिफिक, कि हमें जब हम पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, सो वी हैव ऑप्शंस कि हमें कौन से पर्टिकुलर एरिया के लोगों को टारगेट करना है, या कैसे इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना है, कैसे बिहेवियर के लोगों को टारगेट करना है। So we can choose accordingly. So social media platforms offer robust advertising options to target specific demographics, interests, and behavior. Then we have to utilize paid advertisements so that we can reach larger audience, drive more and more traffic, and we can generate leads and increase the sale of our business. तो हमें जो भी हमारा पेड एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करनी है, और उससे ज्यादा हमारी ट्रैफिक आएगी, फिर हमारी लीड्स भी जनरेट हो सकती है। देन उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब आप पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करना है। तो वो क्या है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आरओआई चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक पेड एडवर्टीजमेंट की है तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है, यू हैव टू कीप अ चेक ओवर दैट, आपको वो रेगुलरली चेक करनी चाहिए। तो उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, और उसको अगर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं, सो यू हैव टू मेक चेंजेस इन दैट सो दैट यू कैन यूज इट ऑप्टिमाइज। देन इज डाटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो डाटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी सोशल मीडिया मैट्रिक्स है उनको एनालाइज करना है, और एक वैल्यूएबल मतलब अपने जो भी आप कैंपेन्स क्रिएट करोगे, वो सब जो भी ये आपकी एनालिसिस है, जो भी मैट्रिक्स है, ये एक वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें। तो आपको जो की फैक्टर्स हैं, जो की मैट्रिक्स है जिनको मॉनिटर करना है, वो है कि आपकी रीच कैसी है, आपकी रीच कितनी है, आपकी एंगेजमेंट कितनी है, क्लिक थ्रू रेट्स कितना आ रहे हैं, कन्वर्जन कितना हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब चीजों को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। देन इस डेटा को आपको यूज करना है ताकि आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सको, आइडेंटिफाई कर सको ट्रेंड्स को। देन अगर आप फ्यूचर कोई कैंपेन रन करना चाहते हो, देन आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देन ट्रेंड अवेयरनेस, जैसे आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड एवरी डे चेंज होता है, हर दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड चेंज होता है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स। अगर आप अपने बिजनेस को ऑन की मतलब बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ट्रेंड जो चेंज हो रहे हैं उनसे अवेयर रहना चाहिए। तो सोशल मीडिया लैंडस्केप्स आर डायनेमिक विद ट्रेंड्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स, वायरल कंटेंट की, वायरल जो भी कंटेंट होता है, जैसे वायरल ऑडियो, जो भी आजकल ट्रेंडिंग ऑडियोज चल रही है, यू कैन यूज दैट। अगर आपको कोई कंटेंट करना है तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप कंटेंट पोस्टिंग कर रहे हो। देन उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि आप एक रेलेवेंट एंड कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी रख सकें। So if you guys have any queries related to this topic, just raise your hand or put your queries in the chat box. I hope everything is clear to you all regarding this topic. Yes, no, anything? Yes, Amit, you want to say something? Nothing. So you just showed Meta. So Meta is actually the what Yes. actually Meta is like. I know it's the parent company of Instagram and Facebook, but how do we get those metrics and all from Meta? If you have created a professional profile on social media like Instagram and Facebook, so you have to just link your profiles and then you will automatically get a meta suit. Okay. तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है उसमें इनसाइट्स में। इफ यू विल गो, यू विल रीडायरेक्टेड टू मेटा सूट ओनली। Okay. So not for personal profiles. For example, if I have a Facebook profile, Facebook page, can I start tuning into Meta for analytics and stuff? Or No, only if it's for business only pages? for business or public pages, because अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, यू डोंट हैव टू, आई थिंक यू डोंट हैव एनी यूज ऑफ Yeah, no purpose for verifying the metrics. That's true. Yeah.
ठीक है, ठीक। तो मुझे वो मेटा के बारे में ज्यादा जानना चाहिए, क्योंकि वही तो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होगा ना। हाँ, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो अभी हमने थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, तो अब वी विल डिस्कस अबाउट कि सोशल मीडिया एक्चुअल में होता क्या है एंड उसकी इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो वो भी जानना जरूरी है। तो पहले आपको थोड़ा सोशल मीडिया का आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले आपको सोशल मीडिया सॉरी मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए था, तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल मीडिया ओनली, कि सोशल मीडिया होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो वहाँ यू विल फील, मतलब आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस पता लगेगी, देन आपको चीजें थोड़ी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो थैंक। फर्स्ट थिंग, जैसे हम समझते हैं कि सोशल मीडिया जो एक्चुअली एक इजी, जिसको हम समझते हैं कि हाँ ये तो इजी सी चीज है, ये हो जाएगा कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग इजी से कर लेंगे, आसानी से। बट नो, वो केस नहीं है। पहली बात, वी हैव टू, कि ट्रेंड्स का हमें पता होना चाहिए, कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ट्रेंड का हमेशा पता होना चाहिए। एंड आपको पोस्टिंग टाइम, आप यू वॉन्ट बिलीव कि सोशल मीडिया पे वी हैव आइडियल पोस्टिंग टाइम, कि आपको ये दिखता है सोशल मीडिया पे कि आपका आइडियल पोस्टिंग टाइम क्या है, एंड आप उस पर अगर पोस्ट करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम रीच। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे हमें ध्यान रखनी पड़ती है, while like if we want to grow our content creation or business. So I'll share my screen and let's discuss about social media more. So is my screen visible to you all? यस मैम। Okay. तो एज वी ऑल डिस्कस कि सोशल मीडिया बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं या टूल्स होते हैं जो हमें कुछ हमारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, या आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए वी यूज, एंड ताकि हम अपनी कम्युनिटीज बना, वर्चुअल कम्युनिटीज बना सके और नेटवर्क्स बना सके। So these platforms basically facilitate interaction, communication, and collaboration through text, images, videos, and other multimedia formats, connecting people worldwide in real time. So आप सबको पता है कि हम इजिली वर्ल्ड वाइड किसी से भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक वी कैन टॉक विद देम, वी कैन चैट, लाइक वी कैन फेस टाइम विद देम, वी कैन सेंड देम इमेजेस, वीडियोस एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि कनेक्टिविटी, कि कनेक्टिविटी क्या है, इजिली हम वी कैन कनेक्ट विद एनी वन अराउंड द ग्लोब। किसी से भी हम इजिली बात कर सकते हैं, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, वी कैन डू नेटवर्किंग। और अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के आपके ग्रो कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता लगे, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ योर बिजनेस। तो ये हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। देन एंटरटेनमेंट होता है, ऑब्वियसली वी यूज सोशल मीडिया एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। देन वी कैन शो आर एक्सप्रेशंस कि हमें कैसा फील हो रहा है, वी कैन शो पीपल ओवर सोशल मीडिया हाउ वी आर फीलिंग, और वी कैन शो आर क्रिएटिविटी। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, आप दिखा सकते हो कि व्हाट क्रिएटिविटी यू हैव, मतलब जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी शेयर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट विद सोशल मीडिया। देन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट इस यहाँ सोशल नेटवर्क साइट बेसिकली जहाँ हम सोशली नेटवर्क बना सकते हैं अपनी और लोगों के साथ। सो दैट इज फेसबुक, लिंक्डइन एंड माई स्पेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। दैट देन इज माइक्रो ब्लॉगिंग। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग मीन्स जो हमारी मतलब काइंड ऑफ ब्लॉग का जो छोटा वर्जन होता है। तो दैट इज ट्विटर, टम्बलर, ये हमारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉपुलर एग्जांपल्स हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के। देन इज मीडिया शेयरिंग नेटवर्क, जहां हम सिर्फ मीडिया शेयर कर सकते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। देन इज डिस्कशन फोरम्स एंड कम्युनिटी वेबसाइट, जहां हम डिस्कशन कर सकते हैं, दैट इज कोरा। कोरा के बारे में सबको पता होगा, एंड स्टैक ओवरफ्लो। तो ये है हमारे डिस्कशन फोरम। देन इज जहां हम रिव्यू एंड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म्स, अगर जैसे ट्रिप एडवाइजर है, गूगल रिव्यूज है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप रिव्यूज दे सकते हो किसी बिजनेस को। देन इज प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, दैट इज सबसे आज तक जो हम ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस यूज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, दैट इज लिंक्डइन।
देन इज मैसेजिंग ऐप, दैट इज व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सब हमारे मैसेंजर ऐप, मैसेजिंग ऐप हो गए. Then impact of social media. So impact of social media, like I'll share, stop my screen and you guys will tell me the impact of social media. कि इस social media जब से आया है तो उसका impact क्या हुआ है हमारी life में. So all of you, please give me one point, like each one of you give me one point of impact of social media. Please unmute yourself. Connectivity easy to all. Sorry. कनेक्टिविटी इजी हो गई सबके साथ. हाँ जी. शेयर करना भी इजी हो गया. हाँ जी. Okay, good. What about others? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गया. Okay. Information is spread better now, and Yeah. people are gaining information, and everybody is actually having information on their hands. So Yeah. it's very True. good. Others? Guys, एक बारी में रिस्पॉन्ड करा करो. प्रियंका, सिद्धार्थ, शुभेंद्र, ये पॉइंट हो गया है, इजी गेटिंग इंफॉर्मेशन. तो प्लीज कोई और पॉइंट बताओ मुझे. प्रियंका, सिद्धार्थ. Okay, then I'll tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कम्युनिकेशन इजी हो गया है. वी ऑल डिस्कस अबाउट कि कम्युनिकेशन इजी हो गया है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि हम इजीली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. देन वी कैन बिल्ड रिलेशनशिप्स, कि हम नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हैं. जैसे लिंक्डइन पे यू ऑल नो दैट वी कैन बिल्ड आवर कम्युनिटी लाइक नेटवर्क ओवर लिंक्डइन. वी कैन build our networks in relationships over Facebook, Instagram also. We can connect with more and more people. Then if you are a content creator, you can influence and you can do opinion shaping. कि अगर आप एक influencer हो या content creator हो, देन आप क्या कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. मतलब लोगों पे आप अपने ओपिनियंस भी उनको उनके साथ शेयर कर सकते हो. देन यू कैन लाइक नाउ डेज इट इज वेरी इजी कि अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत इजी हो गया अपना बिजनेस रन करना एंड मार्केटिंग करना सोशल मीडिया के ऊपर. तो ये नहीं है कि यू गाइस लाइक नीड अ वेबसाइट, कि आपको कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि वेबसाइट चाहिए. अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, यू कैन रन ओवर सोशल मीडिया ऑल्सो. देन सोशल मूवमेंट से एक्टिविज्म, ये सब चीजें भी आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हो. मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, जैसे यूट्यूब पे बहुत अच्छी जैसे मेंटल हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए वीडियोस आती हैं, या कुछ रील्स है, शॉर्ट्स हो गए. तो इन सब चीजों से हम जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, कि अगर किसी को प्राइवेटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो वो अपना पब्लिक की जगह प्राइवेट प्रोफाइल भी कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हमारे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट में आती हैं. देन एक एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया की ग्लोबल रीच हो गई. इंस्टेंटली यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, कि आप अभी आपको मैसेज करने का मन कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब किसी को, एंड यू कैन डू दैट. देन टारगेटेड मार्केटिंग, आप पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि आप चाहते हो कि इस एरिया के या इस बिहेवियर या इस इंटरेस्ट के लोगों को वी कैन टारगेट, यू कैन डू दैट ऑल्सो विद सोशल मीडिया पेड एडवर्टीजमेंट. देन इज कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, कि आप कुछ मतलब जैसे अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं, बट सोशल मीडिया पे यू कैन डू दैट विद मिनिमल चार्जेस. और अगर आपको पेड एडवर्टीजमेंट नहीं यूज करनी है तो आप बिना उसके भी आप इजिली अपने बिजनेस को विजिबल कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो. देन ब्रांड अवेयरनेस, आप अच्छे अच्छे जैसे कंटेंट क्रिएट करके, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके यू कैन लाइक डू ब्रांड like increase your brand awareness. Then customer engagement, you can engage with your customer or through messages, comments, and you can post Q&As, polls over stories, so easily you can connect with your audience. Then market research, आपको जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके इनसाइट्स में जाके यू विल नो अबाउट कि आप मतलब यू विल नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर ऑडियंस. तो आप इजिली मार्केट रिसर्च, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हो सोशल मीडिया पे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं.
किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप मार्केट रिसर्च इजीली कर सकते हो. देन कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, यू कैन कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स एंड डू नेटवर्किंग ऑल्सो. देन एजुकेशन एंड लर्निंग, कि आप यूट्यूब और मतलब शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू आपको जैसे एजुकेशन और लर्निंग के बारे में, जैसे आजकल आप देखोगे यूट्यूब से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, so you can do learning from that also. Then is social impact, कि आप अगर किसी चीज के लिए सोशल इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो यू कैन डू दैट विद सोशल मीडिया ऑल्सो. So if you guys have any queries related to this topic, just raise your hand or put your queries in the chat box. Yes, no, anything? Tell me, then we will move forward to our today's last topic. No queries, ma'am. Thank you. Okay, what about others? Okay, then we will move forward to our today's last topic. I'll share my screen now. So is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. So our today's last topic is how social media marketing is different from traditional marketing. So any one of you can unmute yourself and tell me कि social media marketing और traditional marketing में क्या difference है? इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एरिया लिमिटेड रहता है, ये एरिया अपने नहीं, हिसाब मैं से कम ज्यादा डिजिटल करना. मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कहीं भी बात नहीं करी है. मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस पूछ रही हूँ. डिजिटल मार्केटिंग अलग हो गया एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग हो गया. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है. तो आई वांट डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग. Better reach in social media marketing than traditional marketing. हाउ? Greater reach. I mean, like through social media platforms like Facebook and everything. So lots of people are on social media platform these days. That's one thing. So it's easier to catch the eye of the viewer. Okay. Yes. Okay. What about others? सोशल मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है? Guys, this is an interesting topic. Please participate. Social media, Priyanka is saying social media marketing can reach everyone, can target certain categories of audience, easy to access and promote. Okay, yes, good. And traditional marketing में हम मतलब ऐसे मुझे सिर्फ सोशल मीडिया का मत बताओ, मुझे सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस, कि अगर हम ज्यादा रीच कर पा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या कर पा रहे हैं, वो चीज मुझे डिफरेंस चाहिए. You guys are telling me about only social media. Traditional marketing is expensive compared to social media marketing. Okay. Yes. So we discuss about social media marketing. So let's discuss about the difference now. कि social media marketing and traditional marketing बहुत सारी चीजों में अलग है. बहुत सारे की एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब जिन चीजों में अलग है हमारा सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया मार्केटिंग. जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स हो गया, ऑडियंस इंगेजमेंट हो गया, टारगेटिंग ऑप्शंस हो गए, मेजरमेंट कैपेबिलिटीज होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. तो इन सब चीजों में क्या है हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस. तो टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन चैनल्स, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए सोशल मीडिया के, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, अब टिकटॉक तो अब नहीं रहा है पर इंडिया में बेसिकली. तो ये क्या है, एक प्राइमरी हमारे कम्युनिकेशन के चैनल हो गए. अब स्नैपचैट भी आ चुका है. तो दीज ये प्लेटफॉर्म्स क्या है, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने में डायरेक्टली उनके ऑडियंस से. कि आपको पता है कि जैसे मेरा प्रायु का इंस्टाग्राम पेज है, तो मैं प्रायु के इंस्टाग्राम पेज पे क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर्स, अपने ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकती हूँ और मैं डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ थ्रू सोशल मीडिया. तो मैं उनकी पोस्ट पे कमेंट कर सकती हूँ, उनका मतलब उनको मैसेजिंग कर सकती हूँ. देन स्टोरीज अगर मैं पोस्ट करती हूँ तो वो भी मेरी स्टोरीज पे रिप्लाई कर सकती. तो ये सब चीजें मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर सकती हूँ. वेयर एज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मीडिया ट्रेडिशनल मार्केटिंग,
तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे ऑफलाइन चैनल्स होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया जिसमें हो गया हमारे न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, बैनर्स हो गए, डायरेक्ट मेल्स हो गए, या इन पर्सन कोई इवेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होंगी। तो इन सब चीजों से क्या होता है, वी कैन नॉट कनेक्ट विद आवर ऑडियंस डायरेक्टली, तो ये दिस इज ओनली आवर वन वे कम्युनिकेशन विद लिमिटेड इंटरेक्शन एंड ऑडियंस। कि इसमें क्या हो गया, हमारा लिमिटेड ऑडियंस होंगी, और प्लस भी हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं। एज अ बिजनेस मैं अपनी बात कह सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, और मैं इंटरेक्शन नहीं कर सकती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। So that is the one difference between social media marketing and traditional marketing. Then we will talk about the audience engagement. तो audience engagement की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो audience engagement जैसे हमारा social media marketing की, we talk about social media, तो social media हमें real time engagement में help करता है। मतलब we can like in real time we can connect with our audience, we can engage with them। जैसे यूजर्स हमारी जो भी हमारे पोस्ट है उसको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और और हम उनके साथ अपनी एक कम्युनिटी, अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, हमारे ब्रांड की लॉयलिटी बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ेगी। और बिजनेसेस भी क्या है, अगर कोई कस्टमर है, किसी को कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी उन्होंने डाली है, या कोई फीडबैक है, तो वो इजिली हम सोशल मीडिया के थ्रू भी दे सकते हैं। वेयर एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि ऑडियंस एंगेजमेंट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज टिपिकली पैसिव। कि इतनी पैसिव है कि हम, मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इमिडिएटली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनसे फीडबैक भी नहीं ले सकते। और जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्सेज है वो इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली हमारे पास नहीं आते, जिससे क्या हो जाता है, हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी ऑडियंस चाहती क्या है, व्हाट आवर ऑडियंस वांट, वी कैन नॉट know with traditional marketing. Then is targeting option। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग में बेसिकली जो हमारे मतलब टारगेटिंग ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हम डेमोग्राफिक के डेटा के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट, ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के, एंगेजमेंट कितनी है उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। एंड हम जो भी हमारी पेड एडवर्टीजमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारे ऑडियंस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग टेलर भी कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, और मैक्सिमम और वो रिलेवेंसी भी हो और इफेक्टिवनेस भी हो उसमें। वेयर एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक जो होती हैं वो ब्रॉडर टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज पे रिलाई करती हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक पे हमने ये टारगेट कर लिया, जैसे कि एज के हिसाब से कर लिया, जेंडर के हिसाब से, या लोकेशन के हिसाब से कर लिया। बट ऐसे नहीं है कि हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही डेमोग्राफिक को टारगेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमें ब्रॉड डेमोग्राफिक लेना पड़ता है इसमें। एंड टारगेटेड ऑप्शंस जो होते हैं हमारे पास इतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं होते हैं कंपेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर हम मेजरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें, तो जो डिजिटल एनालिटिक टूल्स होते हैं वो क्या है, एक डीप हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि हमारे सोशल मीडिया कैंपेन्स, हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारा एंगेजमेंट रेट हो गया, क्लिक थ्रू रेट्स हो गया, कन्वर्जन हो गया, इंप्रेशंस हो गया, ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स हो गया। ये इजिली हम एक रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इनको एनालाइज कर सकते हैं। देन इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होगा, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन। कि हम, मतलब बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे हमारे जो कैंपेन्स हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए मेजर करना। वाइल जो मेथड्स होते हैं जैसे सर्वे हो गया, फोकस ग्रुप्स हो गया, ट्रैकिंग कोड्स हो गया, वो यूज करते हैं हम अपने कैंपेन्स में। बट वो क्या है, वो हमें इमिडिएटली ऐसा नहीं मेन, मतलब इमिडिएटली हमें इंसाइट्स नहीं प्रोवाइड करते कि हमारा कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो सोशल मीडिया, सॉरी, जो सोशल हमारे जो स्मॉल हमारे बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट, मतलब कई बार ये होता है कि वो वेबसाइट नहीं बिल्ड कर सकते, तो वो इजीली अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे रन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको एक प्रिसाइज की, उनको वो प्रिसाइजली किसी पर्टिकुलर मतलब ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं,
और अपने बजट के अकॉर्डिंग वो पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक रीच तो उनको आती ही है, तो और अगर वो अच्छे से क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करें, हैशटैग्स अच्छे से यूज करें, पर्टिकुलर टाइम पे अच्छे से पोस्ट करें, तो उनको ऑर्गेनिक रीच तो आ ही रही है अच्छे से। वेराज ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली हमारा टीवी, रेडियो, प्रिंट पे होता है, जिन पे हमारी जो कॉस्ट पर रीच है वो क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उससे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। और जिनका मतलब उन जिन बिजनेसेस का बजट कम होता है उनके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। So that's it from my side. If you guys have any queries related to this topic, just raise your hand or put your queries in the chat box. Is everything clear to you all? Yes, no? Yes, ma'am. And Okay. we'll get to understand better once we start doing this, like working on this and stuff like that. So, Yeah, once you will create your professional profiles on the social media platforms, you will get to know more about these things. Like you will be amazed to see what kind of insight the social media analysis like insights provide. So they will provide you a deep insights about your audience. So if you are like someone who want to start their small business, social media is a good like social media, you can opt social media for your business. I like go for it. yeah. Thank Yes, you, ma'am. yeah. Anyone else? किसी का कोई और डाउट है? Yes, no. At least show me a thumbs up if everything is clear. Guys, students, respond. Yes, no. Okay. प्रियंका एंड अमित, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों को समझ आया कि सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? सिद्धार्थ, शुभेंद्र, मिनाज? Okay. Okay, then we will wind up today's session here. And if you guys have any queries after the class also, you can reach out to us, like me, Sita ma'am, Ravi sir, you can reach out to any one of us. And please do practice or whatever we teach you in the class. And so then we will see you in the next class. Bye everyone.